I'm Uday Pratap Singh. You're joining us on NewsX. Now, we're going to be talking, of course, about a campaign that we've started here on NewsX. The motive was to fill the vacant seats, of course, the vacant government seats meant for Pakistan-occupied territories of Gilgit and Kashmir, and giving people who were persecuted by the terror state representative and representation in the Union Assembly. Now we're witnessing baby steps being taken. Due to the centre's new domicile law, POK refugees around the country have started getting these certificates and are now bona fide citizens of Jammu and Kashmir. Yesterday, we showed you the bill drafted by New World Order, which will help getting our campaign into action. Let's have a look at this exclusive report filed by my colleague Ajay Jandial. Take a look. The papers I am holding in my hands may be very normal thing for you or somebody else, but it has a very important, role for the people of Pakistan-occupied Kashmir, those who are fighting for last more than 70 years, for the citizen of Jammu and Kashmir, the people, those who are living all over the country in different states. Yes, I'm talking about the Pakistan-occupied refugee, and these are the domicile which is being issued by the Jammu and Kashmir Union Territory government, and you can see that this is issued by the Relief and Rehabilitation Commissioner of Jammu, and this belongs to a person who was basically from Sialeh of Mirpur, which is in Pakistan-occupied Kashmir, and now at present he is living in Jaipur. Ashwini Kumar is from Mirpur. He migrated in 1947 after Pakistani army they attacked them, and like Ashwini Kumar, there are thousands of people living all over the country in different states. You can see these are the these are the domicile certificate issued by the authorities here in the Jammu and Kashmir, and now the people, those who are living in different states, those who are fighting for the citizenship in Jammu and Kashmir, they become the citizen of Jammu and Kashmir, and definitely it is going to impact their life, and it is like dream come true. And we have with us Mr. Rajiv Chunni, who was fighting for last many years for the same, and especially for the people, those who are living all over the country. Rajiv ji, ये बताइए कि कितनी बड़ी जीत है इन लोगों की, और कितनी तादाद है, कितने ये बन चुके हैं डोमिसाइल, और कितने और होंगे जो अभी इंतजार में हैं? देखें, एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि ये लोग अपनी जड़ों से जुड़ना चाहते थे। ये बोनाफाइड सिटीज़न हैं जम्मू कश्मीर के, महाराजा हरि सिंह की टेरिटरी के लोग हैं, लेकिन तकनीकी तौर पर इनको यहाँ से काट दिया गया था, और ये चूँकि चंक ऑफ पॉपुलेशन वहाँ से उजड़ कर आया था, तो इतनी जगह नहीं थी सब लोगों को यहाँ पर आश्रय देने की। तो हमने हिंदुस्तान के अन्य राज्यों से ये आग्रह किया था कि आप इनको यहाँ रखिए, जब तक जम्मू कश्मीर का हम फैसला करते हैं इनको हम वापस ले आएंगे। लेकिन उसके बाद किसी ने इनको पूछा नहीं, और इनका सपना था कि जिस रियासत में हम जन्मे हैं, पले हैं, बड़े हुए हैं, उस रियासत के साथ हमें जोड़े रखा जाए, उसके साथ हमें काटा ना जाए, लेकिन कभी इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। अब धारा 370 और 35 से समाप्त होने के बाद जो डोमिसाइल का नया कानून आया है, उसके साथ ये भी जोड़ा गया है कि जो लोग उन जगहों के नागरिक हैं जो आज पाकिस्तान के कब्ज़े में हैं, जम्मू कश्मीर के इलाके, वो चाहें तो वो आज अपना डोमिसाइल यहाँ से ले सकते हैं, चूँकि वो बोनाफाइड है। तो हमने इन लोगों के लिए, हमारी संस्था ने प्रयास किए, चूँकि इस कोरोना काल में उनका आना यहाँ मुनासिब नहीं था या संभव नहीं था, तो हमने उनको कहा आप ऑनलाइन भेजिए या ऑफलाइन भेजिए, हम यहाँ से हमारे वॉलंटियर्स मदद करेंगे। और जो रिलीफ कमिश्नर माइग्रेंट हैं उनको अथॉरिटी दी गई है। तो मुझे खुशी है इस बात की कि आज 20,000 के करीब लोग जो हैं वो डोमिसाइल या रजिस्टर्ड हो चुके हैं। All right, let's in fact bring in a special panel that's joining us live on the broadcast. We have GS Bakshi, POK refugee, who is live with us. Yogesh Chopra, POK refugee, also joining us live. Romi Sharma, POK activist, is live with us. And Rajiv Chunni, Chairman SOS International, is also joining us, in fact, live on the broadcast. Sumit Peer, political commentator, is with us as well. Let me begin with you first, Rajiv Chunni. Rajiv Chunni ji, अब आगे की रणनीति क्या होगी? ये मुहिम जो है, जो न्यूज़एक्स ने छेड़ी है, और आप इस मुहिम का हिस्सा रहे हो, आपने तो बहुत सालों से आवाज़ उठाई है, ये आगे अब बढ़ रही है, मगर इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए अब आगे क्या करना होगा राजीव जी?
देखिए, धन्यवाद न्यूज़ एक्स का। और मैं समझता हूँ कि हम तो बड़ी देर से बोल रहे थे, लेकिन आवाज़ कहीं जिस जगह पहुँचनी चाहिए थी नहीं पहुँच पा रही थी। लेकिन आपने हमारा साथ दिया और लगातार इस कैंपेन में हमारे साथ रहे, क्योंकि ये एक, मैं कहता हूँ, इट इज़ ए ह्यूमन इशू मोर देन ए पॉलिटिकल। तो इन लोगों की मदद होनी चाहिए थी, क्योंकि ये बोनाफाइड थे। उसके बावजूद अगर आपने इस रियासत से उनका पूरा हक ही मार लिया और उनको यहाँ से अलग कर दिया, दोबारा उनको यहाँ आने का मौका नहीं दिया और वो अपनी जड़ों से काट दिए गए, ये जुल्म है। और मैं समझता हूँ कि ये आपके इस टेलीविज़न चैनल की मुहिम का असर है कि आज यहाँ लोगों के डोमिसाइल बन रहे हैं और लोग बड़ी खुशी के साथ, बड़े हर्ष के साथ इसमें शामिल हो रहे हैं। और ये जो पैनलिस्ट आपने यहाँ बिठाए हैं, इनमें से ये दोनों इसके लाभकारी हैं, इन दोनों के परिवारों को मिला है। हालांकि एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं इनको नहीं जानता था, ये मुझे नहीं जानते थे, लेकिन जब ये कैंपेन चली है डोमिसाइल की, इस बहाने से हम सब लोग एक दूसरे के नज़दीक आए हैं। चूँकि हम सारे लोग जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, तो मैं समझता हूँ कि जब ये कंप्लीट हो जाएगा, मुझे उम्मीद है कि ये 2.5 से 3 लाख लोग जो हमारा जम्मू कश्मीर से बाहर रहता है वो पुनः यहाँ जुड़ेगा। और उसके बाद जो कैंपेन आपके साथ मिलकर हमने चलाई है कि इनको पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मिलनी चाहिए, तो जो सीटें हमारी जिसको लॉक कर दिया गया है और वो बंद हैं, जो खोली नहीं जा रही, हम उसके लिए भी एक प्रयास करेंगे, क्योंकि 10 लाख के करीब, 1 मिलियन के करीब लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर रहते हैं। तो बाहर वाले भी मिलकर जब ये सारी संख्या सामने आएगी, निश्चित तौर पर हम इस पर प्रयास करेंगे। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये काम पहले भी किया जा सकता था। आज हमारे जो लोग जो ओरिजिनली डिस्प्लेस थे, जो वहाँ से आए थे, जिनका सपना था कि हम जहाँ जन्मे हैं, जहाँ हम बड़े हुए हैं, जहाँ पले हैं, हम वहाँ जाएं, अपने इलाके को देखें, रहें, अपनी रियासत के अंदर रहें, यहाँ के मौसम को देखें जहाँ पे हम पैदा हुए थे, लेकिन किसी ने वो मौका नहीं दिया। आज वो मौका मिला है, हम आभारी हैं भारत सरकार के। और मैं समझता हूँ कि इसके लिए हम अपना प्रयास जारी रखेंगे। आपका सहयोग भी हमें मिलता रहेगा और मिलता भी रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे जो भी हमारी रणनीति बनेगी, हम आपके साथ उसको साझा करेंगे और इसको आगे ले जाएंगे। जी बिल्कुल। लेट मी ब्रिंग इन आवर अदर गेस्ट देन एज वेल हु आर ऑल लाइव विद अस। हमारे संग शायद इस वक्त जीएस बख्शी जी हैं। जीएस बख्शी जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? हाँ जी, पहुंच रही है जी। बख्शी जी, आप भी एक ऐसे रेफ्यूजी हैं जो पीओके से आते हैं। इस मुहिम के बारे में आप क्या कहेंगे बख्शी जी? और अब क्या आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी हैव यू गॉट इट? आपको प्राप्त हो चुका है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट? और आगे क्या आप ये भी चाहेंगे कि अब पार्लियामेंट में भी, अब जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी जब चुनाव हो, पीओके के लिए भी सीटें होनी चाहिए, गिलगित बाल्टिस्तान के लिए भी सीटें होनी चाहिए? हमारा जो हक है, जो जम्मू कश्मीर हमारा है, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स भी अब पार्लियामेंट में आए, ये जो खाली सीटें उनको भरा जाए। क्या ये आगे की रणनीति अब होनी चाहिए, ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स आप जैसे लोगों को देने के बाद? देखिए, ये टीवी चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे बुजुर्गों ने इतनी कुर्बानी दी, इतने जुल्म सहे, औरतों के साथ इतनी बर्बरता हुई, उसका मुआवजा अगर सरकार देने चाहे तो वो नहीं भर सकती। लेकिन सरकार सिर्फ एक जो काम सरकार ने, मौजूदा सरकार ने शुरू किया है, एक तो डोमिसाइल का, एक उनके ज़ख्मों पे मरहम लगाने का जो थोड़ा बहुत कंपनसेशन इन्होंने ग्रांट किया है, वो भी कंपनसेशन अभी लोगों को पूरी तरह से नहीं मिल पाया। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नहीं मिला। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हमारे जो बुज़ुर्ग थे, 3 पीढ़ियाँ गुजर चुकी हैं। 3 पीढ़ियाँ जो गुजरी हैं वो इस इंतज़ार में रही कि सरकार, उस वक्त की मौजूदा सरकार जो थी, कब जागेगी, कब उनकी तरफ तवज्जो होगी, कब उनके हक दिए जाएंगे, कब उनकी लिविंग दी जाएगी, कब उनको उनका जो स्टेटस दिया जाएगा। वो तो गुज़र गए, लेकिन अब जो पीढ़ी है वो भी अब तकरीबन
पूरे किनारे पर बैठी है, अब भी वो इंतज़ार कर रही है। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि ये जो मौजूदा सरकार ने ये जो डोमिसाइल का सिस्टम शुरू किया है, ये एक आप ये कहें कि एक थोड़ी सी मरहम लगाने वाली बात है जी। जो हम डिस्प्लेस्ड पर्सन हैं, जिन लोगों ने अपनी परिवार बुज़ुर्गों से लेके अब तक भी वो खुली हवा देखी नहीं है। जैसे बाकी माइग्रेंट हैं JNK के, उनको जो फैसिलिटी दी गई है, हमको सोतेला व्यवहार करके उन लोगों ने हमारी अभी तक हमारे चेहरे पे रौनक नहीं आ पाई। लेकिन ये जो स्टेप लिया गया है, ये कह सकते हैं कि ये एक शुरुआत है। आने वाले टाइम में ऐसा स्टेप ले करके इसको पार्लियामेंट में ले जाना, इसको संविधान में ले जाना और सबको राइट मिलना वोटिंग का, और इसको और पॉलिटिकल लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे आगे ले जाना, ये एक थोड़ी सी रोशनी की किरण नज़र आ रही है। और ये सारी जो डोमिसाइल के थ्रू उसके आगे जो प्रपोज़ल हैं, जो आगे जो सिटीज़न को जो प्रॉपर राइट्स होने चाहिए, वो अब तक इनको तो बेचारे ये सोतेले रहे, लेकिन अब रोशनी नज़र आ रही है। ये जो मौजूदा गवर्नमेंट का जो स्टेप है, इसमें थोड़ी सी झलक हमें ये नज़र आई है कि आने वाले टाइम में हमारी बेहतरी होगी। ओके, यू नो दैट्स अ वैलिड पॉइंट you're मेकिंग बख्शी जी। और वही बात मैं चुनी जी के मैं सुमित पीर के पास लेना चाहूँगा। सुमित पीर, ये मरहम है मगर अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, ये मानना है चुनी जी का, ये मानना है बख्शी जी का। क्या इसी राय से आप भी सहमत हैं? डू यू ऑल्सो बिलीव दिस, देयर इज अ लॉट मोर टू बी डन बट द प्रोसेस हैज स्टार्टेड, द व्हील्स हैव स्टार्टेड rolling in that direction? Uday, first of all, today is history in making, and we are lucky that to be part of this momentous occasion. That is first of all. I want to compliment three people. First of all, the government of India for taking this overdue step or bold step, which was deserving for last 70 years. I want to congratulate Rajiv Chunni ji and all my brothers and sisters on this panel and all the millions who are watching this, who deserve this. They have got it finally. Congratulations. बहुत बहुत बधाई आपको. Point number 3, Uday. I want to compliment you. I want to compliment NewsX because this is your national impact, Uday. This is your national impact. It is NewsX who has created this impact. It is the relentless coverage, relentless programs, and I have been myself part of numerous debates with Rajiv Chunni ji on this. We have always said these people deserve it. They deserve it for last 50 years. They cannot wait for a domicile for next 15 years to come because they've already waited for 20 years. So these 13 lakh people who are our brothers and sisters, they have today got the right. So it's a momentous occasion. It's a moment of joy. But Uday, let's remember when something starts, when anything starts, when even Superman was born, he was wearing diapers. So it takes time for anybody to grow up and to reach a level. The first step in the right direction is done. It is acknowledged it's a problem. We are settling it. We are giving them their right. I think today, what is difference from yesterday is tomorrow morning when they wake up, they are as Indians as you and me or anybody else. That is the first thing they wanted. They did not want to be in no man's land. Pakistan तो छूट गए, हिंदुस्तान के हुए नहीं. अब आप हिंदुस्तानी हैं, अब आप कश्मीरी हैं, अब आप भारत के सशक्त नागरिक हैं. You are citizens of the free India and you well deserve it. Now all other things will happen. There's another point we have been very pertinently making on NewsX today is that these people, including the people who have migrated in 1919, the Kashmiri Hindus because of genocide, they should get reservation because if you look, there are empty seats. Because if you look at though I know the delimitation process is being worked out, but it is time to give them reservations. Some amount of seats should be reserved for these people because that is the way how you can have political representation in the true sense. Otherwise, if you look at the demographical spread of the population, a fair political representation may not be possible. When people have, had their night of misery for 70 years, 7 decades have passed away, Uday, 7 decades. Now it is the time to set that everything aside. आज सब गिले शिकवे माफ हैं, आज सब गलतियां माफ हैं, आज एक नई beginning हुई है. I will call it the Diwali. Today is the Diwali of the POK displaced people. आज आपका दिवाली का दिन है. आज आपकी वाकई में अब आप घर आए हैं. See this as you are coming home, and we should be overjoyed. And let me tell you, with this government, with Modi ji, Modi है, मुमकिन है, कुछ भी चीज नामुमकिन नहीं है.
everything will fall in place. But देखिए ये दिन कितने मुद्दतों बाद आया. Uday, congratulations to you, congratulations to NewsX, congratulations to PM, and congratulations to J&K Governor, congratulations to Chuniji and 1.3 these 13 lakh people. बहुत खुशी है आज. मेरा I mean I can't express my emotions. I'm so happy. रोमी शर्मा का रुख भी कर लेते हैं. रोमी शर्मा, क्या आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल गया है? रोमी शर्मा, आज आप क्या महसूस कर रही हैं ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्राप्त करके, और अब आगे रोमी शर्मा क्या चाहेंगे आप? ये जो मुहिम है जो हमने छेड़ी है, इसमें आगे आप क्या चाहेंगे? रोमी जी, ओवर टू यू. नमस्कार. मुझे तो ऑनेस्टली बहुत अच्छा लग रहा है. जैसे पहले भी बोल चुके हैं सुमित जी कि दिस इज अ ग्रेट स्टेप, बिकॉज यू नो आई एम फ्रॉम जम्मू, लेकिन मेरी शादी बाहर हुई है. सो आई वाज वेटिंग फॉर दिस डे. यू नो यहाँ पे लड़कियों के लिए काफी सारी चीजें थी, तो हमारा ये था कि एटलीस्ट अपनी यहाँ पे हम पले बड़े, वहां पे हम बसना चाहते हैं, तो वो वाली एक चीज भी हमसे छीन ली गई थी. वी आर वेरी हैप्पी. मतलब दिस वाज अ ग्रेट डिसीजन आई मस्ट से. ओके, ग्रेट डिसीजन. बट रोमी जी, आगे क्या चाहेंगे? क्या आप चाहेंगे कि सीटें भरी जाएं जो पीओके के लिए सीटें हैं? डेफिनेटली, बिकॉज सी हमारा अपना लीडर होना जरूरी है. इतने साल हो गए, 73 इयर्स, हमने जो भी लीडरशिप देखी है उन्होंने हमारे लिए तो कुछ नहीं किया. ये आप भी जानते हैं, मीडिया में है, और हम लोगों ने इतना सफर किया है. मैंने भी पिछले कुछ दिनों पहले 22 अक्टूबर को भी यही बोला था कि क्या हमारे लोग भी गन कल्चर अडॉप्ट करेंगे, तो तभी हम लोगों के जो बच्चे हैं, हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, उनके लिए ये जॉब्स के बारे में सोचेंगे, उनके लिए कोटा के बारे में सोचेंगे, हमारी अपनी लीडरशिप के बारे में सोचेंगे. क्या हमें बहुत सारे लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, दे आर वेल एजुकेटेड, दे आर वेल डिजर्व, यू नो, इनको अब आई थिंक इट्स लॉन्ग टाइम अब इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए. बिकॉज 73 इयर्स हो गए, हम लोगों को रिप्रेजेंट करने वाला कोई नहीं है. जो हम लोगों का पेन है वो देखने वाला, वो सुनने वाला कोई नहीं है. तो जब तक हम में से कोई अपना लीडर नहीं होगा, तो बाहर के लोग कैसे सुनेंगे और कैसे समझेंगे उधर. तो मुझे लगता है इट्स ऑलरेडी वेरी डिलेड. नाउ इट्स द हाई टाइम कि जैसे बाकी चीजें थोड़ी थोड़ी रास्ते पे आ रही हैं, इन चीजों को भी अब इन्होंने यू नो स्ट्रीमलाइन पे लाना चाहिए. ओके, राजीव चुनी जी, ये मरहम है, मगर आगे भी बहुत कुछ करना है, ये मानना है बख्शी जी का भी और रोमी जी का भी. राजीव चुनी जी, इस पे क्या कहेंगे आप? दीज आर टू पीपल, टू डायरेक्ट बेनिफिशरीज, जैसे आप कह रहे थे पहले, दे आर टू डायरेक्ट बेनिफिशरीज एंड दे आर टू डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स. इनकी ही बात सुननी चाहिए और इनकी ही बात हम सीधा देश तक पहुंचा रहे हैं आज रात. देखिए, अभी भी मुझे दिल्ली से, यूपी से, बिहार से, हर स्टेट में मेरे लोग रहते हैं विस्थापित. अभी भी वो विश्वास नहीं करते कि ये हो सकता है या हो रहा है. मैंने उनको कहा कि काफ़ी परिवार इसका लाभ ले चुके हैं, आप इत्मीनान रखिए कि ये वाकई में हो रहा है और ये मुमकिन हुआ है. ये ठीक कहा मेरे दोस्त सुमित पीर जी ने, और ये हमेशा हमारी मदद करते आए हैं. मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, और ख़ास तौर पर आपके इस चैनल का. मैं समझता हूँ कि इस पूरे जो आज हमने पाया है, इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि एक एक्सटेंसिव कैंपेन आपने चलाई है इस हक में. और मैंने पहले भी कहा, ये एक इंसानी मसला है राजनीति से ऊपर उठकर. तो इस मसले पर जिस तरीके से सरकार ने अपना रुख स्पष्ट किया है, हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो सीटें हमने रिजर्व करके रखी हुई हैं असेंबली में पाक अधिकृत कश्मीर के उस एरियाज़ के लिए, वो खाली शोभा की वस्तु नहीं रहेंगी जो आज तक रही हैं. उनको वाकई प्रैक्टिकल शेप दी जाएगी. और ये लोग आज उपलब्ध हैं आपके पास, 13 लाख लोग हिंदुस्तान में उपलब्ध हैं. बिल्कुल. उनमें से जितने एलिजिबल वोटर बनते हैं, बिल्कुल, आप उनको वोटर बनाइए. और मैं समझता हूं कि मुजफ्फराबाद के लिए, मीरपुर के लिए, पुंछ के लिए, तो आगे इस पे नजर रखेंगे और आपके साथ लगातार प्रोग्राम्स करते रहेंगे. आज के लिए बस वक्त समाप्त होता है. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.